Good morning, students. This is a part 2 of your fourth chapter, The Freedom Struggle of 1857 of Maharashtra State Board Class 8. तो इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके दूंगा, तो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, वी डी सावरकर नेम द स्ट्रगल ऑफ 1857 एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड, दैट इज यूनाइटेड द रामोसीज रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, उमाजी नायक। Third, after the struggle of 1857, the post was Secretary of State was created. Fourth question, that was the Governor General who annexed the princely states, Lord Dalhousie. The meaning of he introduced the doctrine of lapse. स्कीम के जरिए बाकी के रीजन्स को भी कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। First question, the Paikas made armed rebellion against the British. You know the Paikas were the, अब गिव रीजन है तो आपको ऐसा आंसर लिखना है कि लास्ट में या स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूरा लिख लें। द पाइकास मेड आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज द हेरिडेटरी लैंड दे वर अलॉटेड बाय द किंग्स टू द पाइकास एंड पाइकास सर्व एज अ स्टैंडिंग आर्मी टू द किंग्स, but their lands were confiscated by the Britishers. That's why they made an armed rebellion against the British. ऐसे आंसर लिखना है आपको। सेकेंड, देयर वाज अ डिसकंटेंट अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाहीज because the British provided a long infilled rifles to the Indian sepoys. The sepoys were required to bite the end of the cartridges was smeared in the religions. Sentiments of Hindus and Muslims were hurt because it was thought that that cartridges made from the fats of the cows and pigs. Cows were holy animals for the Hindus and Muslims, as well as the pigs were the prohibited for the Muslims. So that's why there was a discontent among the Hindus and Muslim sepoys were there. Third question, the Indian sepoys couldn't keep stand in front of the British army. उसका रीजन क्या हो सकता है? The Indian rebels had limited arm supply and the British had economic strength, disciplined army, enough stock of latest arm and experienced arm material. Since the transport and communication was in the hand of the British, so they easily defeated the Indian sepoy. So that's why the Indian sepoy couldn't keep stand in front of British army. Next question number 4. After the struggle, Indian army was divided on the basis of caste. What is the answer? So answer, you can write English officers were placed at strategic location. Artillery was exclusively in the hands of British, and there was a division of military on the basis of caste. Proper care was taken to avoid Indians to unite and reunited against the British. तो ये देखा गया कि अब वापस जो इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन सिपाहीज, इंडियन सिपाही या फौजी है वो वापस रीयूनाइट ना हो सके, इसलिए उन्हें हमेशा अलग थलग डिफरेंट लोकेशन पे उनकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश इम्पोज द हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। जनरली रीजन ये हो सकता है कि द ब्रिटिशर्स, द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स टू ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया एंड to as much as possible they want a more and more income or revenue from India. So that's why they impose a heavy taxes on Indians. So that's why उन्होंने स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर पे इम्पोज किया, उसके बाद टू सेल द ब्रिटिश गुड्स अपने साथ लार्ज क्वांटिटी में मशीन से बने माल ला के यहाँ बेचते थे तो और सस्ते दामों में खरीदते थे, और इंडियंस पे उन्होंने इंडियंस माल पे ऑलरेडी टैक्स लगा दिया, तो इसकी वजह से वो महंगा हो गया। इसकी वजह से इंडियंस के माल का कोई खरीदार ना रहा और उनका इंडियंस का नुकसान होते रहा, तो इसलिए उन्होंने द ब्रिटिशर्स इम्पोज द हेवी टैक्सेस ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट वर द सोशल काउजेज बिहाइंड द स्ट्रगल ऑफ 1857। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो यूजिंग द की वर्ड द सोशल काउजेज है, राइट। सोशल काउजेज मतलब द एनी ट्रेडिशनल कल्चरल एंड कस्टम्स ऑफ इंडियंस। एट दैट टाइम द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग देयर कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। उनके रिलीजन में, उनके कल्चर में इंटरफेरेंस हो रहा था अंग्रेजों का, लाइक सती पे बैन किया, विडो रीमैरिज एक्ट लाया, है ना। So they prohibited the Sati Act, Widow Remarriage Act they passed and were corrected from social point of view. But Indians thought that it is an interference in their life. Understand? Next question,
Why did the Indians fail in the struggle of 1857? Because the struggle didn't take place simultaneously all over India. First point you can write. And intensity was more severe in North India, but Rajputana, Punjab, some parts of Bengal and North were remained aloof. कि कुछ you can also write that मैप के जरिए मैंने आपको बताया कि near only 25 to 30% areas of India was under the control of Indians under the revolt of 1857. बाकी 75% के करीब तो एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ में था ना. That is the reason. Second reason, lack of central leadership. Third reason, most of the feudatory princes remain aloof. Just a common people suffered due to the British rule. Similarly, the prince also were suffering, but expect a few others remain faithful to the British. ये क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया हुआ है कि कुछ प्रिंसेस के अलावा ज़्यादातर जो प्रिंसेस थे वो अंग्रेजों के वफादारी रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857. कॉन्सिक्वेंसेस, द वर्ड यहाँ पर अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको कीवर्ड्स देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन राइट द आंसर. अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे, रिजल्ट क्या थे. द ब्रिटिश रियलाइज दैट द वी कैन नॉट रूल similar manner as we earlier ruled to over India because the Indians might reunite again and attack on us. First. Second, the freedom struggle of 1857 forced the British Parliament to end the company rule. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और वहाँ से ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो गया. एंड इट्स स्टेट टेक ओवर द डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश. and there was a division of military on the basis of caste. जबकि मिलिट्री को कास्ट के बेसिस पे, यानी कि हिंदू का दैट ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था, हिंदू मुस्लिम में और हिंदू के डिफरेंट कास्ट में टकराव पैदा करना, डिवाइड एंड रूल. तो इस तरीके से वो आगे के 90 साल यानी कि 1857 से 1947 तक के रूल करे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया, डिफरेंट कास्ट को आपस में लड़ाया. तो उनका मेन पर्पस ही इंडिया पे हुकूमत करना और इंडिया को आपस में झगड़ाना ये था. Next question, what were the changes in the British policy after the struggle of the 1857? The British accepted that the policy of non-interference, ये उन्होंने किया कि अब interference नहीं करेंगे in social and religious aspects of Indians, and they also started taking care that the Indian society will not be united on social grounds. So इसलिए आगे चल के आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकमान्य तिलक ने 1920 से पहले दैट आज जो हम गणपति विसर्जन करते हैं, गणपति त्यौहार मनाते हैं, ये महात्मा लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था. राइट. उनका मेन पर्पस क्या था कि सारे लोग एक साथ आ जाए इन द ऑल. वो अंग्रेजों को ये बोलते थे कि वी आर गैदरिंग एज इट इज़ अवर रिचुअल, ये हमारी रस्म है, रिलीजियस रस्म है. लेकिन उनका मेन मोटिव था, लोकमान्य तिलक का मेन मोटिव था फ्रीडम स्ट्रगल था. राइट. तो इसलिए वो पब्लिक सब गैदर हो जाए, इसलिए वो गणपति उत्सव मनाते थे, गणपति का त्यौहार मनाते थे. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, देयर विल बी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजियस, रेस, टेरिटरी एक्सेट्रा. सो दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. ये सारे का आंसर खत्म हुए. इस तरीके से अंग्रेजों ने बाकी के 90 साल रूल किया, लेकिन बहुत सारे लीडर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया लोकमान्य तिलक, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सब लीडर्स आए और इन्हें डिफरेंट टेक्निक के जरिए, जैसे लोकमान्य तिलक ने इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिले और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़े. तो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक को डिफरेंट लीडर्स ने इस्तेमाल किया, जो कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस